Hello friends, welcome back. Today we are going to start with chapter number 3, OCM 12th Commerce, new syllabus. Chapter's name is, as you can see, Entrepreneurship Development. Okay, so first of all, when you hear this word entrepreneur, okay, what clicks to your mind? Many people may think entrepreneur is just a manager or a businessman, but no, the word entrepreneur has a very vast and a deep and a very general meaning. Okay, so it is not you can say it is similar to manager or a businessman, but it has a very vast different meaning. Okay, so we're just going to go through this introduction part, the history from where this word came about. Okay, so as you can see here from the history, in the early 16th century the term entrepreneur was used by Frenchmen to denote man leading in army applications, okay, expeditions. So first of all, this word was used in army. Okay, the leader of the army contingent, that was called as a entrepreneur. Okay, so we cannot say in the early days the businessmen used to called as entrepreneurs. It changed by course of time. In the 1700 AD the term was used in French for contractors and architects. Now really it started to be used by the businessmen. Okay, by the early 18th century the term was applied to the business and economic activities of the French economist Richard Coalition. Okay, so then till the 18th century it was then started to apply to all the businesses. This was just the introduction part, history part. It can come in objectives for you. Okay, so here the concept of entrepreneurship is given. The concept of entrepreneurship. Okay, the main meaning of entrepreneur or entrepreneurship means to undertake a task, to undertake a work. Okay, to set up anything. Okay, so first of all, make one thing clear. Okay, the manager, businessman, okay, or the entrepreneur, though being same, are vastly totally different in their logical terms. Okay, you can use the terms together interchangeably also, but the main meaning or the center of the point changes when we say a person is a entrepreneur. Okay, in simple words, in Hindi और in Marathi हम लोग जिसको उद्योजक बोलते हैं. ओके, उद्योजक, ठीक है, इज नॉट कॉल्ड एज अ बिजनेसमैन. उद्योजक कौन होता है? जो कुछ सेटअप करता है, कुछ स्टार्टअप करता है. ओके, खुद किसी को रोजगार देता है. ओके, वो उद्योजक कहलाता है. ओके, सो मैनेजर कैन बी हायर्ड, he can be a employee, not the employer. Okay, but entrepreneur, okay, or entrepreneurship deals with employing many various peoples under your factory, under your company, or anything it can be. Okay, so we are not just going to go through all these points, we are just going to see the main points of this chapter. First important question of this chapter is characteristics of entrepreneur. Okay, before doing this characteristics, I just want to make one point clear. Till last year this chapter was asked for 10 to 12 marks, and it was last chapter in the textbook till last year. This year this chapter is chapter number 3, okay, in your new syllabus, and we don't know the marking scheme. It will be given to you in coming future, okay, in coming days as per the given marking scheme. But as far as we know, this chapter may come for 10 to 12 marks or 10 to 15 marks with options. Okay, with options. When I say with options, it means this chapter may carry 3 to 4 questions. Out of that you have to do any 2. Okay, so majorly I don't think any long question is going to come from this chapter. Maximum marks, okay, it will be 4 or 5 depending upon the marking scheme or the paper pattern which will be given to you in coming days. Okay, so one thing is for sure, if you have many points in one chapter or many points in one topic, you can do just 5 to 6 points on basis of the marking scheme. So as you can see here, characteristics of an entrepreneur. Okay, so characteristics का दूसरा नाम क्या है? Features. This question may also come as features of entrepreneur. Okay, characteristics entrepreneur of features of entrepreneur. So as you can see the listed points, the points, these are very simple, logical and practical points. Anybody can understand, anybody can write in your own language. You just have to read the points, do the points by heart. No need to by heart all the things which is written inside. You can write in your own words. Okay, so first point, as you can see, it is given as intellectual capabilities. Every entrepreneur is intelligent in his own mind. Okay, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बहुत अच्छा एजुकेशन चाहिए, ओके, तो ही वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है. नो. ओके, धीरूभाई अंबानी इज अ क्लासिक एग्जांपल. Bill Gates is a classic example. They were not too literate. Okay, then also they are the world's most best entrepreneurs, as you can see, as you all know. Okay, so intellectual capabilities, intellectual and academic career are both different. Okay, a person can have a gold medal in MBA or something, okay, on further studies, but that does not mean that he is intelligent in every aspect. Okay,
businessman needs a acumen of a businessman mind. ओके, सो इट डज नॉट मीन कि इंटेलेक्चुअल आपका अच्छा है, एजुकेशन आपका अच्छा है तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन सकते हो. नो. ओके, एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल हैव नथिंग टू डू विथ इट. ओके. सेकेंड, फ्यूचर विजन. ही इज अ फ्यूचर थिंकर. वो फ्यूचर के बारे में सोचता है, वो आज ही आने वाले कल के बारे में सोचता है, देखता है कि ऐसा हो सकता है. जो आम लोग नहीं अंदाज़ा लगा सकते, वो अंदाज़ा वो तुरंत लगा सकता है. उसको एंटरप्रेन्योर, उसको एक फ्यूचर विजन वाला माइंड कहते हैं. हार्डवर्क सब जानते हैं, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्डवर्क. ओके, लेकिन आज की तारीख में हार्डवर्क के साथ साथ एक और वर्ड में बोलना चाहूंगा, हार्डवर्क के साथ साथ आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क. ओके, हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क, यू हैव टू बैलेंस बोथ ऑफ दिस थिंग इन टूडेज लाइफ. ओके. फोर्थ, टेक्निकल नॉलेज. टुडे एज यू नो टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग. ओके, सो एक एंटरप्रेन्योर को टेक्निकल नॉलेज में भी एक्सपर्ट होना चाहिए. ही शुड नो ऑल द टेक्निकलिटीज ऑफ द करंट न्यू टेक्नोलॉजीज. Communication skills, very important. He has to be a very good communicator with his employees, with his subordinates, everyone. Okay, good communication is the best example for a manager to maintain good relations. Highly optimistic. वो हमेशा पॉजिटिव थिंकर होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पेसिमिस्टिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए. ओके, ही शुड बी ऑप्टिमिस्टिक थिंकर. रिस्क बेरिंग कैपेसिटी, उसके अंदर रिस्क बेयर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए. लॉस हुआ चलेगा, बट लॉस आपको सिखाता है, एक एक्सपीरियंस देता है कि आगे चल के वो मिस्टेक नहीं करना है और उसको आप प्रॉफिट में बदल सकते हो. लेकिन अगर आप डरोगे कि लॉस हो गया तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे. ओके, सो रिस्क बेरिंग कैपेसिटी इज नीडेड. एंड लास्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस. उसके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि दूसरों को बता पाए कि यस वी कैन डू इट. अगर वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है तो दूसरों को वो नहीं बता सकता है. ओके, सो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एज यू कैन सी. ओके, सिमिलर टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स देर आर कॉल्ड एज क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. क्वालिटीज, ओके, बोथ आर सिमिलर, लेकिन क्वेश्चन आपको अलग आएगा. ओके, क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ अ एंटरप्रेन्योर. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द क्वालिटीज. क्वालिटीज, क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में. सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड. डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर स्टूडेंट लाइफ ऑल्सो. ओके, जब मैं डिसिप्लिन की बात करता हूं तो उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, वर्क कल्चर, पंक्चुअलिटी, एवरीथिंग. ओके, तो सब कुछ उसमें डिसिप्लिन एक लाइफ होगा तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे. उसके बाद सेकेंड पॉइंट इज कॉन्फिडेंस. जैसे हम लोग ने पहले भी देखा, सेल्फ कॉन्फिडेंस सेम रिपीटेड पॉइंट है, मैंने बताया ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर्स है. ओके, कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए तभी वो दूसरों को कॉन्फिडेंस दे सकता है. ओपन माइंडेड, ही शुड हैव अ ओपन माइंड. ठीक है, उसको कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं होना चाहिए. ही शुड बी हैविंग अ वेरी ओपन माइंड, ओपन टू ऑल, ओपन टू आइडियाज. अगर कोई छोटा आदमी भी उसको अगर कोई आइडिया आके बताता है तो उसको सुनेगा वो. ठीक है, करना नहीं करना उसकी मर्जी, बट सबका सुनना चाहिए. सेल्फ स्टार्टर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सेल्फ स्टार्टर का मीनिंग होता है टेकिंग द इनिशिएटिव. ओके, वो खुद एक इनिशिएटिव लेके खुद का काम खुद करेगा तभी तो दूसरों को लगेगा ना यस वी हैव टू डू दिस. सिमिलरली कॉम्पिटेटिव, आज के ज़माने में कंपटीशन में यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव. ओके, इफ़ यू आर नॉट कॉम्पिटिटिव यू आर लूजिंग योर बैटल. सो कॉम्पिटिटिव एंटरप्रेन्योर होना चाहिए. क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी तो होना ही चाहिए, क्रिएटिविटी के बिना तो कुछ नहीं होता है. ओके, क्रिएटिविटी इन एवरी सेंस. ओके, क्रिएटिविटी इन हिज वर्क, क्रिएटिविटी इन what he is doing in every situations. ओके, सो क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिटर्मिनेशन, मुझे करना ही है. ओके, परसिवियरेंस, डिटर्मिनेशन. अगर उसने वो कोई फैसला लिया है तो डिटर्मिनेशन के साथ उसके पीछे वो पड़ जाएगा तो ही उसका वो लक्ष्य हासिल कर पाएगा. स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, पहले भी पॉइंट आ चुका है. कम्युनिकेशन स्किल उसका अच्छा होना चाहिए विथ हिज एम्प्लॉयज, विथ हिज सबॉर्डिनेट्स, एवरीवन. स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स. वर्क एथिक्स आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कोई बिजनेसमैन चाहे तो गलत तरीके से पैसा कमा सकता है और कोई चाहे तो मेहनत करके सही रास्ते पे जाके कम पैसा मिलेगा उसको लेकिन प्रॉफिट में आ सकता है. तो उसके पास दो रास्ते हैं. ओके, कौन से रास्ते पे चलना है वो उसके अंदर का जो पर्सनल एथिक्स है वो उसको बताएगा. सो बिजनेस एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यू डू गुड थिंग्स और यू डू बैड थिंग्स. एथिक्स इज नथिंग बट गुड एंड बैड. वो हर इंसान के अंदर होता है. ओके, गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स. लेकिन कौन सा चेहरा, कौन सा क्वालिटीज अपने आप की वो बाहर निकालता है दुनिया के सामने, वो उसके एथिक्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो गुड एथिक्स, बैड एथिक्स. पैशन, पैशन के बिना तो दुनिया में कोई काम नहीं होता है. ओके, आप स्टूडेंट्स हो. ओके, अगर आप में पैशन ही नहीं है पढ़ाई करने का तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे. ठीक है, जिस तरह से आप मोबाइल्स पे, सोशल मीडिया पे देखते रहते हो,
कुछ ना कुछ करते रहते हो, वो आपका पैशन हो गया, वो आपका हॉबी हो गया है। लेकिन वही चीज़ अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई के मामले में आप करोगे, आप पैशन से करोगे, तो आप अपना लक्ष्य हासिल कर पाओगे। ओके, सो दीज आर ऑल द बेसिक पॉइंट्स। आपको मैंने जैसे बताया इतने सारे पॉइंट्स करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू ओनली 5 to 6 पॉइंट्स फ्रॉम दिस ऑल दिस। ओके, उसके बाद फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर है। फंक्शंस, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स है। ओके, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने आपके लिए एक छोटा सा पीपीटी प्रिपेयर किया है, जिससे आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं या क्या होता है। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में एक छोटा सा पीपीटी है, आपको बताता हूँ मैं। Our chapter name Entrepreneurship Development, okay, OCM 12th Commerce. Now as you can see here, जब भी हम लोग मैनेजर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एंटरप्रेन्योर के बारे में सोचते हैं तो क्या आता है? सूट बूट पहने, टाई पहने, कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करता हुआ इंसान, एसी ऑफिस में बैठा है। ओके, ये हमारे दिमाग में आता है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। ओके, 99% ऐसा होता होगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई मैनेजर है तो एसी ऑफिस में बैठेगा, टाई सूट पहन के बैठेगा, अच्छा दिखेगा। नो, ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, सो ये एंटरप्रेन्योर की बात हो रही है, सिर्फ मैनेजर की बात नहीं हो रही है। तो आपके दिमाग में जो एक मैनेजर का एक पोस्टर होता है, एक पिक्चर होता है, वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बिकॉज अ मैनेजर कैन बी अ मैनेजर। वो ज़रूरी नहीं है कि टाई सूट पहन के बैठे हो हर बार, ठीक है। तो कहने के लिए वो मैनेजर हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन हिज वर्क कल्चर, क्योंकि अगर वो जैसे काम करेगा उसके हिसाब से उसको उसका अपीयरेंस रखना पड़ेगा। बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर जगह पे वो टाई सूट पहन के जाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम होता है। ओके, वो ज़रूरी नहीं है कि वो टाई सूट पहन के ही करे। एज यू कैन सी हियर, एक नीचे पोस्टर दिया है आपको, जिसमें वो मैनेजर को बताया है, और ही इज हैंडलिंग सो मेनी थिंग्स। ओके, वो मल्टीटास्किंग कर रहा है, देख सकते हो आप, मल्टीटास्किंग कर रहा है वो अकेला इंसान इतने सारे काम कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज मल्टीटास्किंग। ओके, जो आज का मैनेजर या एंटरप्रेन्योर करता है। नेक्स्ट, let us see some of the major entrepreneurs or some of the major businessmen that has come in India. Okay, सब जानते होंगे, इनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। श्री धीरूभाई अंबानी, ओके, द पायनियर ऑफ इंडियन बिजनेस। ओके, इनके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, एवरीबडी नोज अबाउट हिम। हिज सन मुकेश अंबानी, ओके, दे आर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और रिलायंस, सिर्फ रिलायंस तो नाम है, लेकिन रिलायंस के अंडर में बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज उनकी है। ओके, जो हम लोग नाम भी नहीं जानते होंगे उनका। ओके, सो ये सारी कंपनीज है, रिलायंस कंपनी उन्होंने स्थापित किया था। आज उनका बेटा मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी चला रहे। नेक्स्ट यू हैव ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कॉर्नर, यू कैन सी दिस जेंटलमैन, हिज नेम इज श्री रतन टाटा। एवरीबडी नोज हिम ऑल्सो। ओके, टाटा ग्रुप, इनके फैमिली का ग्रुप है टाटा, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप। ऐसे ही इंडिया में बहुत सारे ग्रुप है, हिंदुजा ग्रुप, ओके, रुइया ग्रुप, हिंदुजा ग्रुप, डाबर, डाबर का नाम कैसे पड़ा था? डॉक्टर बर्मन, उनके हिसाब पर से नाम पड़ा था डाबर। गोदरेज, ओके, गोदरेज कंपनी। आदित्य बिरला ग्रुप, बिरला फैमिली का ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप। टीवीएस साउथ की कंपनी है, सुंदरम कंपनी है। और ये सारी चीज़ें इंडिया की, आप बोल सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हो, जो आज की तारीख में बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स, स्टार्टअप इंडिया, ओके, जो ये करके वेंचर्स करके, जॉइंट वेंचर्स करके स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सब सारी कंपनियां पहले से ही इंडिया में है और आज भी दे आर गोइंग नंबर 1। ओके, सो ये आज की तारीख में भी है। एंड दिस ऑल कंपनीज आर कॉल्ड एज पायनियर्स ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ व्हेन वी थिंक इन आवर माइंड अबाउट मैनेजर्स, तो जैसे मैंने पहले भी बताया, जब भी हम लोग मैनेजर के बारे में सोचते हैं कि मैनेजर, एक वर्ड हमारे दिमाग में आता है मैनेजर, तो हमारे सामने क्या चेहरा आता है? सूट बूट पहने वाला इंसान। ओके, बट मैं आपको एक और पिक्चर बताना चाहूँगा। आप सोचोगे कि इसका फोटो यहाँ क्या कर रहा है? ओके, सो नाउ लेट अस सी। इसके बारे में भी कोई बताने की जरूरत नहीं है। कौन है ये? विराट कोहली, ओके, द इंडियन कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम। सो आप सोचते होंगे यहाँ पे विराट कोहली क्या कर रहा है? ओके, ओसीएम के चैप्टर में, कॉमर्स में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें क्रिकेट का पोस्टर क्या कर रहा है? ओके, लेकिन अगर आप ये बाद में, ये स्लाइड खत्म होने के बाद आप खुद जान जाओगे कि विराट कोहली को ये स्लाइड में मैंने क्यों डाला है। ओके, टू जस्ट लेट यू अंडरस्टैंड कि मैनेजर्स सिर्फ कंपनी में नहीं होता है, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ देयर इज अ मैनेजर। ओके, देयर इज अ एंटरप्रेन्योर, एंड उसके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए। वो क्वालिटीज अगर होगी, देन ओनली ही इज कॉल्ड एज अ एंटरप्रेन्योर और अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन और अ सक्सेसफुल मैनेजर। ओके, सो लेट अस सी वन बाय वन, क्योंकि जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे दो पोस्टर में दो चीज़ें हैं, एक तो मैनेजर है बिजनेस वाला और एक तो क्रिकेट का कैप्टन है। नाउ लुक एट द क्वालिटीज, ओके, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो हम लोग ने पहले ही देखा।
ठीक है, टेक्स्ट बुक में, ये टेक्स्ट बुक की सारी पॉइंट्स है, ओके, टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स है, एक दो पॉइंट मैंने ऐड किया हुआ है। तो व्हाट आर द क्वालिटीज? डिसिप्लिन पहले ही डिस्कस कर दिया है। डिसिप्लिन, अभी आप बोलोगे डिसिप्लिन बिजनेस में भी चाहिए, स्पोर्ट्स में भी चाहिए, यस, ओके, डिसिप्लिन आपको भी चाहिए, एज अ स्टूडेंट लाइफ आपको भी चाहिए डिसिप्लिन। कॉन्फिडेंस, यस, ओपन माइंडेड, यस, सेल्फ स्टार्टर दोनों को चाहिए, कॉम्पिटेटिवनेस दोनों को चाहिए, ओके, क्रिएटिविटी दोनों को चाहिए, डिटर्मिनेशन ऑलवेज नेसेसरी, मोटिवेशन वेरी मच नेसेसरी, स्पोर्ट्स में तो ज़्यादा ही मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, यस, जो मैनेजर होता है उसको अपने सबॉर्डिनेट्स, एम्प्लॉयज़, उसके अंदर जो काम करने वाले होते हैं उसके साथ कम्युनिकेशन करना है। एक स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेट कैप्टन है विराट कोहली, उसको अपने दूसरे 10 खिलाड़ियों को मैनेज करना है, ओके, सबको स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। वर्क एथिक्स जैसे पहले ही डिस्कस हो चुका है, गुड एंड बैड दोनों जगह पे होता है, बिजनेसमैन को भी गुड एंड बैड करना होता है, स्पोर्ट्समैन को भी गुड एंड बैड करना होता है, ओके। सो बिजनेस एथिक्स भी होती है, वर्क एथिक्स भी होता है। पैशन, पैशन के बिना आप दुनिया में कोई चीज़ नहीं कर पाओगे, ओके। पैशन अगर होगा, दैट पैशन विल ड्राइव यू टूवर्ड्स योर गोल, ओके। सो बिना पैशन के आप कोई काम नहीं कर सकते हो। जैसे अगर कोई सचिन तेंदुलकर को बोले या विराट कोहली को बोले व्हाट इज देयर पैशन, तो उनका जवाब एक ही होगा, टू प्ले क्रिकेट, ओके, वो उनका पैशन है, ओके। आज इसके लिए वो नंबर 1 स्पोर्ट्स पर्सन है। तो एक बिजनेसमैन अगर बोलेगा कि माई पैशन इज टू मेक माई कंपनी नंबर 1, ओके, देन ओनली ही कैन रीच हिज गोल्स, ओके। टीम वर्क, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम वर्क के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। बिजनेस में भी टीम वर्क इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स में भी टीम वर्क इंपॉर्टेंट है। टीम वर्क का एग्जांपल अगर मैं आपको क्रिकेट टीम का दूं, क्रिकेट टीम में मैदान में उतरते वक्त 11 प्लेयर्स होते हैं। अगर उस 11 प्लेयर्स में से 4-5 लोग ने अपना ग्रुप बना दिया और बोला कि हम लोग आज अच्छा नहीं खेलेंगे, अपने को कैप्टन को हराने का है, उसको निकालना है, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ओके। टीम वर्क का मतलब है एवरीवन, ईच वन फॉर एवरीवन, ओके, हम सबके लिए है और सब हमारे लिए है। सो कहने के लिए टीम वर्क, स्पिरिट दी कॉर्प्स, ओके, टीम वर्क, हम लोग टीम वर्क के बिना कुछ नहीं कर पाते हैं। एंड लास्ट, ऑल दिस पॉइंट्स, ये सब पॉइंट्स सबके अंदर होने चाहिए, वो बिजनेसमैन हो या फिर क्रिकेटर हो, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर होने चाहिए। तभी हम लोग, जैसे हम लोग ने, इंडिया ने वर्ल्ड कप 2 बार जीता है, 1983 एंड 2011, सब जानते हैं, ओके। सो उस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए पूरा टीम वर्क लगा है, किसी एक खिलाड़ी की वजह से हम लोग वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं, ओके। इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ टीम वर्क, ठीक है। कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, ओपन माइंडेड, क्रिएटिविटी, डिटर्मिनेशन, वर्क एथिक्स, पैशन, एवरीथिंग, ये सारे पॉइंट्स जो स्टडीज के पॉइंट्स है वो स्पोर्ट्स में भी काम आते हैं, आपको स्टूडेंट लाइफ में भी काम आते हैं। देन ओनली यू कैन रीच योर गोल। आप अपने लक्ष्य तक, आप अपने टारगेट तक कब पहुंचोगे? जब ये क्वालिटीज आपके अंदर होगी तब, ओके। और उसके बाद हम लोग ने जो टेक्स्ट बुक में देखा, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, ओके, कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो क्या क्या होना चाहिए, फंक्शंस उसके क्या होने चाहिए, तो वही सारे फंक्शंस है। इनोवेशन, ओके, उसका डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, वो ऑब्जेक्टिव्स पहले सेट करेगा और उसके ऊपर काम करेगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, न्यू एवेन्यूज को देखेगा वो। न्यू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो न्यू टेक्नोलॉजी जब भी मार्केट में आती है तो उसको वो इस्तेमाल करना है। गुड रिलेशंस, गुड रिलेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज बिजनेस लाइफ, आपके हर एक के लाइफ में, ओके, नॉट ओनली इन बिजनेस। गुड रिलेशंस विल ऑलवेज हेल्प यू इन ओवरकमिंग एनी ऑब्स्टिकल्स, ओके। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ फंड्स, पैसा, बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा क्या लगता है इंपॉर्टेंट? मनी, ओके। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड्स, अगर वो बड़ी जॉइंट स्टॉक कंपनी चला रहा है तो पैसा कहाँ से आएगा, ओके, पब्लिक इश्यू करना है, ओके, या फिर प्राइवेटली लेना है, बैंक से लोन लेना है, इक्विटी शेयर्स इश्यू करना है, डिबेंचर्स इश्यू करना है, क्या करना है, वो सब वो थिंक करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा फंड्स, ओके। टेक्नोलॉजी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो ये सारी चीज़ें बताती है हम लोग को कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, ओके। और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए जैसे हम लोग ने देखा, ओके, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही नहीं, ये सब हम लोग हमारी लाइफ में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। सो ये चैप्टर और भी है, इसके आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये तो हम लोग ने सिर्फ एंटरप्रेन्योर के बारे में देखा, इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी आपको आएगा। एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे हम लोग ने बताया, एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं? एक उद्योजक, ओके। तो कहने के लिए हम लोग आगे जाके एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उसके फंक्शंस, उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी हम लोग आगे जाके करेंगे, ठीक है। अभी पूरा चैप्टर हम लोग इसमें कवर नहीं कर रहे, विल कवर इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।